Hello, dear students. We are here to discuss a very sensitive topic, or the topic that is very important for your good mark. I welcome you with Dr. P.K. Talansar, and today we have decided to give you practical exposure to discuss two important topics. That is, what is an explanation and how to attempt an explanation in an exam. And second one is how to write best essays, or how to write a essay when even if you are not prepared and you don't know about the topic, or you just find some topic that is out of the syllabus or out of your preparation. ये तलान सर के साथ में मिलकर के जो लेक्चर लेने का प्लान है, उसके पीछे कई बैकग्राउंड है। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने कि सर एक्सप्लेनेशन में मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूँ या बहुत अच्छा लिख रही हूँ, लेकिन मुझे डिजायर्ड मार्क नहीं मिल रहा है। वी आर नॉट गेटिंग बेस्ट मार्क्स। सो कैसे हम बहुत अच्छा मार्क्स पा सकते हैं? सर हम 5 में 4, 4.5 पाना चाह रहे हैं, 10 में 9, 9.5 पाना चाह रहे हैं। सो वी हैव डिसाइडेड टू disclose the secret because we check your answer, and this is not only for your answer but even those who are just viewing this video. This is going to help them a lot to attempt these two questions. This is for an example, if you are preparing for an IS exam or the civil services, then this is the $1,000,000 question, that how to solve your essay writing or the essay questions. Because mains, the examination where you appear in mains, you have to write best essays for your selection. So now you see, this particular slide is visible to you, I know. एक explanation के फॉर्म में जाने से पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग, दैट व्हाट इज एन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है क्या? आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन माई सेल्फ। व्हाई डू पीपल यूज टू say or assert like I don't like to explain myself to anyone? The reason behind it, that they want to say that they are not willing to give clarity. They don't want to give clarity, they are sufficient enough. तो इसमें एक चीज निकल करके आती है दोस्त, कि the meaning of the explanation is to give clear analysis or the detailed description or clear the meaning. यानी कि जो चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, जो चीजें थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, जो चीजें शॉर्ट में हैं, आपको क्या करना है? यू हैव टू गिव a clear or the detailed analysis or the description of particular thing. So giving the clarity is one or the major core of giving an explanation. और what do you see in your exam? अपने एग्जाम में क्या देखते हैं कि there is a text, there is stanza, there is lines, there is piece of the poem. यही सारी चीजें होती हैं और आपसे पूछा जाता है कि write an explanation of following lines or the following stanza. So I'll say, you see, what does explanation really want? Explanation wants to check your understanding of the text. वो टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहता है कि आपका जो टेक्स्ट है आपने कितना समझा है। देखिए, जो लोग कहते हैं आई डोंट वांट टू गिव एक्सप्लेनेशन, मैं तुम्हें समझाना नहीं चाहता हूं, तो उसी को यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि कहते हैं कि इट रियली वांट्स टू अंडरस्टैंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर टेक्स्ट। टेक्स्ट को आपने कितना समझा, जो थीम दी गई है उसको आपने कितने अच्छे से समझा है। हाउ डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्टिकुलर लाइन, डू यू अंडरस्टैंड द रेफरेंस ऑफ दैट लाइन? Another thing is, it also tests your language skill, that how skilled you are. For an example, I can give you one reference or an example. For an example, if I speak in English that I want to read a book,
Hopefully you understand. My name is Dr. Abhishek Kumar Jaiswal. I am collaborating with Dr. PK Talan sir. But if I say, instead of I want to read a book, I say I read book one, so you have general understanding of English, then you will say that this is not a right expression, or probably you may laugh. Second, अगर मैं हिंदी में कहूँ मैं बुक चाहता पढ़ना हूँ, you see, you will find that this is not the proper structure. So you see, explanation also wants to check your proper understanding of the structure. It desires to check or the test the knowledge of your language and the knowledge of the literary devices. अब एक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस पे हम बात कर रहे थे, तो लिटरेरी डिवाइस की बात अगर हम करें तो कितना स्टाइलिश बोलता है, आई वॉन्ट टू सी द बुक एंड लर्न समथिंग, इसका मतलब भी यही हुआ कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रीड का मतलब जैसे होता है मैं पढ़ना चाहता हूँ, उसी तरह से इसका मतलब भी होगा आई वॉन्ट टू सी दिस ब्यूटीफुल बुक एंड आई जस्ट लर्न सम गुड लेसन्स। तो आप कितना स्टाइलिश लिख पाते हैं, यानी कि आप भाषा को कितने, उस जितनी डिवाइसेस इस्तेमाल की गई है, जैसे अक्सर अक्सर आप देखते हैं जो पोम होता है ना, चाहे वो उर्दू के नज्म हो, चाहे इंग्लिश की कुछ लाइनें हो, चाहे किसी डायलॉग हो, तो सीधा कभी कभी सीधा नहीं होता है, तो आपको जानना होगा कि वो कौन से डिवाइस इस्तेमाल किया है, वो चीज़ें आपको एक्सप्लेनेशन में बतानी होगी कि सर यू हैव टू राइट दैट दीज डिवाइसेस, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द कॉमेडी, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द आयरनी। और एक और चीज़, समटाइम्स थिंग्स आर नॉट सेड डायरेक्टली, कभी कभी चीज़ें डायरेक्टली नहीं बोली जाती हैं, कुछ सिंबल्स में बोला जाता है, इसलिए मैंने कहना कुछ और हो, जैसे कि हम किसी को रोज़ गिफ्ट देते हैं, क्यों देते हैं? जब गांधी जयंती होती है तो रोज़ गिफ्ट, कुछ लोगों ने कुछ और ही सोच लिया होगा। गांधी जयंती की बात कर रहा हूँ, 2 अक्टूबर को जब रोड पे ट्रैफिक पुलिस वाला होता है तो रोज़ देता है, शांति का प्रतीक होता है। जब किसी को वैलेंटाइन डे पे रोज़ देते हैं तो लव का प्रतीक होता है, यानी कि आप कुछ भी ना कहते हुए किसी को चॉकलेट देते हैं तो उसको अच्छा लगता है। तो यानी कि समटाइम्स इन योर टेक्स्ट सम इमेजेस आर यूज्ड एंड इट हैज मल्टीपल मीनिंग। उसी चीज को आपको एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, यू नीड टू टेल, यू नीड टू सेट दैट द वर्ड इमेज, the word like rose, the word like chocolate, the word like balloon, the word like x is used for this purpose। ये चीजें आपको बताना होता है, एक्स वाई जेड जो भी वर्ड है उसका एक मतलब आप बता पाएं, तो आपका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत बेहतर माना जाएगा। नाउ I'll just moving towards the technicality of explanation। explanation को कैसे हम टेक्निकली हैंडल करते हैं। You see, explanation को करने का अपना एक प्रोसेस होता है, इट हैज अ पर्टिकुलर प्रोसेस, और वो प्रोसेस क्या है कि देयर आर 4 पार्ट्स। ये आपको मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है, 3 तो पता था, चौथा भले ही ना पता हो। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं मुझे पता है जो कि अक्सर किसी ना किसी चीज़ पे बात करते रहते हैं हमसे, आपको चारों पता है। तो पहला क्या है कि उस सबसे पहले क्या है कि रीड द टेक्स्ट ट्वाइस। जो भी टेक्स्ट आपको आए, चाहे प्रोज में हो या पोएट्री में हो, यू आर रिक्वायर्ड टू रीड इट ट्वाइस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग एंड यू कैन एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट, देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले क्या होता है, रेफरेंस होता है, एंड सेकेंड इज योर कॉन्टेक्स्ट, एंड द थर्ड इज योर एक्सप्लेनेशन, एंड द फोर्थ पार्ट इज क्रिटिकल कमेंट और द स्पेशल नोट्स। ये जो आपका चौथा पार्ट है, ये आपके नंबर को, जो आप हमसे अक्सर पूछा करते हैं सर इतना लिखने के बाद भी हमारा नंबर क्यों नहीं आता है, तो आई टेल यू दिस इज द बेसिक थिंग, जिसमें आप 8, अगर 5 नंबर का है तो 4.5 नंबर लाते हैं, लेकिन जब आप ये लिखते हैं तब अदरवाइज को आपको 2 या 3 नंबर मिल करके संतुष्टि हो जाती है, टीचर भी ज़्यादा नंबर नहीं देता है। नाउ कमिंग ऑन दीज 4 थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, इन चारों चीज़ों पे स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। पहला हमारा है रेफरेंस। रेफरेंस में क्या लिखना चाहिए? रेफरेंस बहुत ही आसान शब्दों में लिखना चाहिए। इट शुड बी रिटन वेरी सिंपल फॉर्म, इजी एंड डायरेक्ट विद सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ द टेक्स्ट। बहुत ही सर्टेन इंफॉर्मेशन देना होता है, जैसे नेम ऑफ द टेक्स्ट, जिस किताब से, जिस चैप्टर से आपका वो लाइन, आपका प्रोज लाइन और जिस पोम से लाइन लिया गया उसका नाम लिखना होता है। रिटन बाई और ऑथर्ड बाई तब लिखना होता है, ऑथर्ड बाई इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आप रिटन बाई लिखेंगे तो थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन अगर आपने ऑथर्ड बाई लिखा तो आप अपने एग्जामिनर का
ध्यान जरूर खींचेंगे। अगर कोई प्रोज है जैसे कि नॉवल, ड्रामा, स्टोरी लिया गया है तो आप ऑथर्ड बाय लिख सकते हैं, रिटन बाय लिख सकते हैं। एंड कंपोज्ड बाय इज जनरली रिटन फॉर द पोम। पोम पोम की जो स्ट्रेंजा ली जाती है, लेकिन अगर आपने उसी को पेंड बाय लिख दिया तो इसी आप तुरंत अट्रैक्ट कर लोगे अपने एग्जामिनर को कि अच्छा पेंड बाय लिखा हुआ, इट मीन्स द पर्सन हैज समथिंग। तो हम कैसे लिखते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोम, कंपोज्ड बाय और पेंड बाय, इतना ही लिखना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। यू नीड नॉट टू गिव मोर इंफॉर्मेशन। और अगर कोई प्रोज है तो दिस पैसेज और दीज लाइन्स, आप अगर लाइन्स लिखते हैं तो हैव लगाएंगे, पैसेज लिखते हैं तो हैज। दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट और फ्रॉम द ड्रामा, आपने हैमलेट का नाम ले लिया, एंड ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर, इतना ही लिख दें आप। या लिख सकते हैं ऑथर्ड बाय, अगर आप उसके एज को जानते हैं, आप 16 सेंचुरीज ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर, आप ये भी लिख सकते हैं एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट, अ फेमस ड्रामाटिस्ट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि इसमें आप और ज़्यादा समय खराब ना करें। नाउ कमिंग ऑन अनदर थिंग, जो दूसरा स्टेप है वो है कॉन्टेक्स्ट। Context needs your major theme in very short form. It means context is not your explanation. Mind it. कभी कभी क्या होता है कि हम कॉन्टेक्स्ट में ही अपना सारा समय खो देते हैं। तो योर कॉन्टेक्स्ट इज नॉट योर explanation. You have to write context only 2 or 2.5 line, that what are the things that you are going to discuss, rather than to tell that what are the things that are there in the line, and say that this is the main theme of the particular lines or the stanza, and we are going to discuss in that way. या आपने एक दो चीजों को बता दिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। मेन आपका आता है एक्सप्लेनेशन, और आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया गया है कि कैसे करना होता है। दिस इज द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ सेंट्रल थीम ऑफ द गिवन टेक्स्ट, पोम, स्टेंजा एंड लाइन्स। ये आपका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है। इट मीन्स यू आर गोइंग टू क्लियर इट लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, समटाइम्स द इमेज बाय इमेज। तो जितनी इमेजेस इस्तेमाल किए गए हो, आप सारा कुछ आपको इसमें क्लियर करना होता है आपके एक्सप्लेनेशन में। अब एक विशेष बात आती है कि एक्सप्लेनेशन के बाद में है आपका क्रिटिकल कमेंट। क्रिटिकल कमेंट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इन योर एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन तो आपने कर दिया, छुट्टी पा गए, बट क्रिटिकल कमेंट और द स्पेशल नोट्स दैट यू आर राइटिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लैंग्वेज सिलेक्शन देखना है कि विच टाइप ऑफ द लैंग्वेज इज यूज्ड, किस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है। जैसे मैंने शुरुआत में बोला था ना, आपकी कॉमेडी है, आयरनी है, ट्रेजेडी है, सिंपल है, तो किस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट, इमेजेस। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इमेज। अगर कोई इमेज इस्तेमाल की गई है तो उसको बोले कि दीज इमेजेस आर यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ और इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेंजा। सिंपल और कॉम्प्लेक्स, do you find that the line is simple, then say that the theme is discussed in very simple manner। या आप कह सकते हैं अगर आपको कॉम्प्लेक्स तरीके लग रहा हो तो कैसे the theme is discussed in very complex manner। एक लाइन का कितना आसान सा है। फिगर ऑफ स्पीच अगर आपको आएगा तभी आप लिख पाएंगे, जिसको हम हिंदी में अलंकार बोलते हैं। इट ब्यूटिफाइज द टेक्स्ट, एंड इफ यू नो द फिगर ऑफ स्पीच देन वेल एंड गुड। और अगर नहीं आता है तो गलती से भी गलत फिगर ऑफ स्पीच लिख करके मत आइएगा। इफ यू नो दैट देयर इज सिमली देन राइट सिमली। अगर आपको पता है यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, सिमली है, अलिट्रेशन है तो लिखिए, नहीं तो इस चीज को छोड़ दीजिए। एंड नेक्स्ट इज इंटरटेक्चुअलिटी। इंटरटेक्चुअलिटी आपने अगर हिंदी में पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा, इसको भाव साम्य बोलते हैं। यानी कि किसी और टेक्स्ट से क्या है मिलता जुलता है, कंपैरिजन बोलते हैं। अगर आपको याद है कि इंटरटेक्चुअलिटी पाई जा रही है, इफ यू कैन सी इंटरटेक्चुअलिटी और द रिलेटेड कॉन्सेप्ट और द रिलेटेड मीनिंग इन अनदर टेक्स्ट, जैसा कि इसमें डिस्कस किया गया है, अगर किसी और बुक में, किसी और पोम में बोला गया है तो इन्हें यू आर फ्री टू गिव द नेम ऑफ दैट पोम। ये चीजें जब आप कर लेंगे तो आपके एक्सप्लेनेशन को, आई एम गोइंग टू से दैट इफ योर लैंग्वेज इज गुड, योर एक्सप्लेनेशन इज गुड, अगर आपने कट पीट बहुत ज़्यादा नहीं किया है तो 9 नंबर का है तो आपको 8 नंबर, 5 नंबर का है तो 4 नंबर। और कभी कभी जब आपने इतना अच्छा काम किया होता है तो 5 में से 5 नंबर देने का मन करता है। मैंने एक चीज़ इसमें लिखा है, एग्जाम्पल ऑफ द फिल्म। ये थोड़ा सा इनोवेटिव है। मैं आपको बताऊं कि एग्जाम्पल ऑफ द फिल्म देने के पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि फिल्म बनने के पहले का एक प्रोसेस बताता हूँ, क्या होता है, उसका नाम लिखा जाता है। ओके, नाम रखा जाता है। दूसरे बात किया जाता है उसका टीजर या ट्रेलर रिलीज किया जाता है, होता है ना।
तो ट्रेलर रिलीज करने के बाद में क्या होता है, ट्रेलर रिलीज करने के बाद में फिल्म आती है, और फिल्म आने के बाद क्या होता है, हम देखते हैं, और देखने के बाद में आपने फिल्म रिव्यू जरूर देखा होगा, आजकल तो ट्विटर पे भी लोग उसका रिव्यू दे देते हैं, कोई क्रिटिक होता है उसका रिव्यू दे देता है, तो योर एक्सप्लेनेशन इज लाइक दैट। जैसे सपोज यू आर फाइंडिंग सम लाइंस और द स्ट्रेंजर्स, तो फर्स्ट यू फाइंड द नेम ऑफ द मूवी, और मूवी आने के पहले आप टीजर पाते हैं, तो टीजर इज योर रेफरेंस, और टीजर या आप उसको टेलर बोलें, तो टेलर इज योर रेफरेंस, यू स्टार्ट टू सी और फाइंड द टेलर इन योर इन ऑन यूट्यूब। उसके बाद में मूवी आती है, दैट इज द मेन एक्सप्लेनेशन, एंड आफ्टर दैट ये फ्लॉप है कि सुपर हिट है कि ब्लॉकबस्टर है, ये क्रिटिक और आप डिसाइड करते हैं। तो इन चीज़ों को डिसाइड करने के बाद में हम पाते हैं कि नाउ दिस इज कंप्लीट, विदाउट द लास्ट पार्ट रिव्यू, उसके पहले हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कंप्लीट हुआ है। सो दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू डिस्कस इन एक्सप्लेनेशन पार्ट। अभी एक बेटे जो इमेज होता है, इमेज कोई ना कोई पर्टिकुलर वर्ड होता है, यानी कि जैसे हमने एक एग्जांपल दिया कि जैसे किसी को रोज देना, तो रोज एक इमेज है, रोज इज नॉट द रियल वर्ड, आपका रियल एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। रोज इज द इमेज, लाइक पेन ऑन पेंसिल इज द इमेज। लेकिन अगर किसी को पेन दिया जाता है तो उसको हम एक इमेज के रूप में देते हैं, कहते नहीं है कि हम आपका सम्मान करते हैं। सो व्हेन यू रीड अ टेक्स्ट, जो आप एक टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं तो आप उसमें क्या पाते हैं, यू फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ द इमेजरी। समटाइम्स यू फाइंड द इमेजरी ऑफ द फ्लावर, समटाइम्स यू फाइंड द इमेजरी ऑफ द रेन, समटाइम्स यू फाइंड द इमेजरी ऑफ द बर्ड। आप बर्ड का डिस्कशन पाते हैं, कि चिड़िया ऐसी चहचहा रही थी, हवाएं ऐसी चल रही थी, जो डोंट यू फाइंड इट। तो वो आपके ओके इमेज, सर। तो उसी इमेज को आपको अपनी भाषा में जो बताने की कला होती है, उसको हम बोलते हैं इमेजेस और द इमेजरी। और सिंबल्स भी उसी तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, दे आर सिमिलर, मोर और लेस। डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर proceeding towards essay writing techniques. You see, essay, जब हम essay कहते हैं कि essay लिखना है, तो हमें essay का मतलब क्या होता है। essay is not a story. स्टोरी बहुत लंबा होता है ना, जब हम स्टोरी लिख रहे होते हैं तो बहुत, नॉवेल पढ़ते हैं तो और ज्यादा लंबा होता है, ड्रामा पढ़ रहे होते हैं तो और लंबा होता है, पोएट्री का फॉर्म अलग होता है। तो जब हम कहते हैं कि ऐसे लिखिए, तो ऐसे लिखने के पीछे कुछ ना कुछ तो जरूर लॉजिक होगा। एंड ऐसे लिखने के पीछे का लॉजिक ये है कि वी नीड टू राइट थिंग्स इन वेरी प्रिसाइज फॉर्म। प्रिसाइज का मतलब समझते, बहुत ही सटीक, बहुत ही सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ अ सिस्टमेटिक डिस्कशन, एक डिस्कशन होता है। और आपको एक बात बताएं, जब ऐसे लिखने के लिए कोई टॉपिक दिया जाता है बेटे, तो कोई समस्या होता है, आप कभी भी सॉल्यूशन नाम के किसी चीज पे ऐसे नहीं लिखेंगे। यू आर ऑलवेज गिवन एन इशू एंड यू हैव टू राइट ऑन दैट पर्टिकुलर इशू। आपको इस उसी इशू पे लिखना चाहता है, तो आप देखिए, हैव टू राइट ऑन अ टॉपिक, आपको एक विषय दिया जाएगा और उस विषय पे आपको लिखना होता है। फॉर्म ऑफ सिस्टमैटिक डिस्कशन, एक पर्टिकुलर डिस्कशन होता है, जैसे कि आप दो चार लोग मिलकर के ग्रुप डिस्कशन करते हैं, उसी तरह से भी लिखने का भी एक डिस्कशन होता है। और इसके स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप हैं। देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ राइटिंग एन एसे। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज बॉडी, एंड लास्ट पार्ट इज कंक्लूजन। अब इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन में होता है आउटलाइन ऑफ द एसे। आप जो एसे लिख रहे हो तो उसका आउटलाइन देते हैं कि सपोज यू आर आस्क्ड दैट राइट ऑन डाउरी, आपको डाउरी पे लिखने को दे दिया गया, तो आप बताएंगे डाउरी क्या है, क्लियर द कॉन्सेप्ट। जो टॉपिक पूछा गया है, सबसे पहले आपका काम ये आता है कि इन इंट्रोडक्शन यू हैव टू क्लियर द टॉपिक, कि इफ यू आर गिवन द टॉपिक ऑफ डाउरी, देन यू से दैट व्हाट इज डाउरी, दहेज क्या है, दहेज क्यों लिया जाता है, दहेज कौन कौन लेता है, दहेज क्यों दिया जाता है, दहेज लेने से क्या फायदे हैं, दहेज लेने से क्या नुकसान है। So in introduction you have to write what is dowry and how many elements are there that you are going to discuss। एक आउटलाइन देना होता है। जैसे कि हमने टीजर की बात की ना, तो टीजर में क्या होता है, टीजर में या टेलर में सारे फिल्म नहीं दिखाया जाता ना, उसी तरह से आउटलाइन में पूरा ऐसे नहीं लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपको केवल वो पॉइंट बताना है जिसपे आप आगे डिस्कस करेंगे। आप उसको चाहें तो पॉइंटर्स में 1 2 3 4 5 करके दे सकते हैं कि दिस इज थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। सो दिस इज योर इंट्रोडक्शन। सेकेंड इज योर बॉडी। the middle part of the essay is known as body। बॉडी जैसे कि हमारा शरीर है, तो ऊपर का हेड समझिए इंट्रोडक्शन है, और जो हमारी जो बॉडी का पार्ट है, समझिए कि जो पैर के ऊपर का पार्ट है हमारी बॉडी है।
तो वो बॉडी है आपका, दैट इज द बॉडी ऑफ द एसे 2, यानी कि डिस्कशन ऑफ रिलेटेड एलिमेंट्स, जो आपने आउटलाइन में बताया कि जैसे डाउरी क्या होता है, डाउरी क्यों लिया जाता है, डाउरी के ये नुकसान, वो सारी चीजें आप डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। डाउरी के क्या लॉज हैं, डाउरी को लेने वालों को क्या सजा मिलती है, यानी कि प्रॉज एंड कॉन्स। मैंने क्या बोला था शुरुआत में, एक समस्या दी जाती है ना, तो समस्या को जो आप डिस्कस करेंगे तो बताएंगे ना क्या क्या समस्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। तो यू आर डिस्कसिंग अ प्रॉब्लम, सबसे पहले आपने प्रॉब्लम बताया कि ऐसा ऐसा होता है, उसको डिटेल में बता रहे हैं, एंड डिस्कसिंग द रिलेटेड एलिमेंट्स विद सपोर्टिंग फैक्ट एंड एग्जांपल्स। और जो भी चीज आप, जैसे कि सपोज अगर आपने 5 एलिमेंट लिया, तो पांचों एलिमेंट में आप सपोर्टिंग फैक्ट और एग्जांपल्स जरूर देंगे, क्योंकि अगर आपने एक पैराग्राफ या एक हेडिंग लिखा और उसको केवल वैसे लिख दिया तो वो बहुत सिंपल टाइप का ऐसे माना जाता है। लेकिन अगर आपने उसको काला अंडरलाइन करके काले पेन से फैक्ट लिख दिया, एंड इफ यू आर गिविंग सम एग्जांपल्स फ्रॉम योर सोसाइटी, जरूरी नहीं किताबों में लिखा हो, क्योंकि ये सोशल इश्यूज पे अधिकतर पूछा जाता है, कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे पूछा जाता है, तो गिव द एग्जांपल एंड अंडरलाइन इट सो दैट योर टीचर कैन रीड इट। So this is the main part, and or you can say the body. And now moving ahead, conclusion is the solution in another form। अब आपने पूरा जो डिस्कस कर लिया उसको आखिरी में आपको बताना है कि इससे फायदा हमने हमने ये मुद्दा लिया था, डाउरी लिया, पोल्यूशन लिया, और पोल्यूशन के बाद में हमने क्या किया, ये चीजें इसमें आई, एंड द नेक्स्ट दिस इज द सॉल्यूशन। So in conclusion you have to give a solution of or the discussed issue, जो discussed issue है उसका solution देना होता है। तो यही एक essay है। लेकिन my friends, this is not the end of the essay। मेन समस्या तो हम अब बात करेंगे जो आपकी है, ये तो हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, किताबों में होता है थोड़ा सा प्रैक्टिकल इशू में। मेन समस्या ये है कि आपको आती है, जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है बार बार, सर कौन सा ऐसे याद कर लें, वो बहुत ऐसी चीज है कि अगर आप याद करके गए तो कोई ऐसे नहीं लिख पाएंगे। हाँ, लेकिन ये भी नहीं है कि किसी भी फैक्ट को देख कर ना जाए, तो उसके लिए आपको ये वाला स्लाइड काम करेगा। दो तरह का ऐसे होता है, फर्स्ट इज प्लान टॉपिक एंड सेकेंड इज अनप्लान टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात क्यों ना कर लें प्लान टॉपिक की। दिस इज द प्लान टॉपिक। यू सी, व्हेन आई से दैट व्हाई शुडंट वी टॉक अबाउट द प्लान टॉपिक, तो प्लान टॉपिक में हमें क्या था, फॉलो, हमें वही प्लान टॉपिक में क्या होता है कि हमें कुछ ऐसे थीम दिए जाते हैं जो हम पहले से याद करके आते हैं, पहले से पढ़ करके आते हैं। वी आर गिवन सच थीम, जैसे कि डेमोक्रेसी, जो अधिकतर ऐसे पूछे जाते हैं उसमें से डेमोक्रेसी पूछा गया, नाउ ट्रैवलिंग पूछ लिया गया, पॉपुलेशन पूछ लिया गया, डाउरी पूछ लिया गया, पोल्यूशन पे कैसे लिखिए, ग्लोबलाइजेशन पे लिखिए, फेवरेट फेस्टिवल जैसे ईद, दिवाली, वट एवर, उस पर आप लिखिए, फेवरेट ट्रैवल, या आपने कोई ट्रैवलिंग की हो, कहाँ पर आप गए थे टहलने, वहाँ का लिख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी प्रॉम्प्ट, आजकल क्या होता है, और जब आप सिविल सर्विसेज में जाएंगे या आप वहाँ के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन यू विल फाइंड दैट करंट इशूज आर आस्क्ड फॉर दैट, यानी कि आपको पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, यानी कि आपको जो करंट इश्यूज हैं, जो आपका समसामयिकी है, उससे आपको जुड़े रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप डेटा और फैक्ट नहीं दे सकते हैं। ये तो हो गया भाई प्लान्ड एस्से, यानी कि यू नो दैट ये चीजें पूछी जा सकती हैं। नाउ कमिंग आउट ऑन अनदर पार्ट ऑफ द एस्से, जहां पे हम बोलते हैं कि अनप्लान्ड एस्से, आई एम ड्रैगिंग इट, दिस इज अनप्लान्ड एस्से। अचानक पूछ लिया गया तो आप क्या करेंगे, अनप्लान्ड एस्से में आप क्या करेंगे, अचानक आपसे पूछ लिया गया तो एक तरीका होता है, यू नीड टू राइट दैट टॉपिक इन सेंटर, उसके चारों तरफ एक गोला खींच दीजिए। अब बताइए कहाँ कहाँ से जोड़ सकते हैं, जैसे कि आपने फ्रेंडशिप लिया तो हम देखते हैं हम कहाँ कहाँ जोड़ दिए, फ्रेंडशिप को पर्सन से जोड़ा, हेल्प से जोड़ा, नीड से जोड़ा, हैप्पीनेस से जोड़ा, लॉयल्टी से जोड़ा, जुड़ सकता है ना, पार्टी से जोड़ा, फ्रेंड के साथ ही करते हैं, सॉन्ग गाना गाना फ्रेंड के साथ कर सकते हैं, रिलेशनशिप फ्रेंड के साथ होता है, लव फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, मदर आपका दोस्त आपके माँ से भी मिलने जा सकता है, ब्रदर, चाइल्ड, सो फॉर सक्सेस, एंड यू सी देयर आर नंबर ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन ऐड। इस तरह से अब जैसे ये आपने ऐड कर लिया, दिस इज समथिंग, अब आप बताएंगे कि फ्रेंडशिप क्या है। इसी तरह से आपको कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, और आपको उस टॉपिक का देना होगा आंसर। तो
ये तरीका आप अपना सकते हैं। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सनराइज इफेक्ट। यू कैन यूज सनराइज इफेक्ट, और आप अपने समय का इस्तेमाल करके उस टॉपिक पे लिखें। तो जो आपका ये क्वेश्चन था ना कि सर कौन सा याद करें, ठीक है, if planned essay is there in your exam then write, and if there is unplanned essay then don't lose your hope, शांति से काम करिए and follow the sunrise effect, and I know I am confident enough that you are going to rock, or you are going to write a good essay even if you are not prepared it। आप अपना ओरिजिनल लिखने जा रहे हैं। if you have good understanding, or if I'll say that if you have good hold on the language, अगर आप लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ करते हैं तो इस तरह से आप ऐसे उसको बहुत प्यार से लिख सकते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर लिसनिंग अस, हम लोगों को सुनने के लिए, और इस पर्टिकुलर लेक्चर में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आई ऑल्सो विश ऑल द बेस्ट दैट यू कैन solve your queries, you can solve you can write in better way that what is an explanation, and I know that if you are sincere enough in this lecture, you will feel comfortable to write or to attempt an essay, or to explain a line or some particular paragraph. So this is all that I wanted to discuss with you. I hope that it is going to help you, and if you have any queries you can drop it in my personal WhatsApp number or in comment, and we'll see you with new lectures. We'll see you with new lectures that are there in syllabus 2, and will also for the competitive exams. Have a nice day. Stay connected.